بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. شاہ صاحب, متحدہ اپوزیشن کو حکومت بنانے پر مبارکباد. کل تک جو اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے تھے کل وہ حکومتی بینچز پر بیٹھیں گے, اور حکومتی بینچز پر بیٹھنے والے کل اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے. کیا مائنڈ میں آپ لوگوں کے ٹارگٹ سیٹس ہیں عوام کے لیے؟ جس بنیاد پر آپ لوگوں نے تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا, مہنگائی کی آپ لوگ بات کرتے تھے, عوام کی تکلیف کی بات کرتے تھے, کیا ٹارگٹس آپ لوگوں نے سیٹ کیے ہیں کہ یہ اچیو کرنے ہیں ہمیں بہت کم عرصے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلا بڑا ٹارگٹ تو ہمارا ہونا چاہیے اکانومی. ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ اکانومی کا ایک چارٹ بنا کے پبلک کے آگے رکھ دیا جائے کہ ملک ہمیں اس طریقے سے ملا ہے. یہ ہم پولیٹیکلی ضرور کریں گے. اس کے باوجود جتنے بھی پارٹیاں ہیں سب کو دعوت دیں گے, آئیں بتائیں اکانومی کو کس طریقے سے بہتر کریں. مگر ان ساری چیزوں سے پہلے ہم اس خط کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کو ڈی کوڈ کریں گے, اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے, کیا حقیقت کیا ہے. ایمبیسیڈر کو بلایا جائے گا اور اوپنلی ہم کریں گے, ایسا بھی نہیں کہ چھپا کے کریں گے. اچھا, اگر امریکہ نے پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پوزیشن کو چیلنج کیا ہے تو ہم نے ہمیشہ خارجہ پالیسی پہ یقین رکھا ہے. مطلب یہ کہ اتفاق ہو چکا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں کہ خط کی حقیقت سامنے لے کر آنی ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل اس پہ اتفاق ہے, بالکل اس چیز پہ مکمل اتفاق ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت ملی ہے, یہ ہم نے حکومت سے عام آدمی کی جان کو بچانے کی کوشش کی ہے. جو ملک کی حالات دن بدن نااہلی کی وجہ سے, انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے اور جیل بھرنے کی, سیاستدانوں کو تکلیف دینے کی, جیل بھرنے کی کوشش, جتنی بھی غیر آئینی طریقے اڈاپٹ کیے گئے, یہ ملک اس وجہ سے سیف نہیں رہا. اب ہماری کوشش ہے کہ ہم توجہ دیں معیشت کی طرف, فارن پالیسی کی طرف, اپنی بہتری کے لیے, اپنے ملک کے لیے, آئین کی اداروں کی بہتری کے لیے توجہ دیں. ہم لوگوں کو انتقام کا نشانہ نہ بنائیں. اگر کوئی قانون ہے, قانون موجود ہے, چور کے لیے بھی ہے, اچھے آدمی کے لیے بھی ہے, بہتری کے لیے بھی ہے, بدتر چیزوں کے لیے بھی ہے. مطلب کہ کرپشن کیسز اگر کھولیں گے, میرٹ پر کھولیں گے, انتقامی سیاست نہیں ہوگی اپوزیشن کے, تو شاید ہی کوئی ایسا نام ہو جو میں لے سکوں جو پچھلے 3 سالوں میں جیل کی ہوا جس نے نہ کھائی ہو. بالکل نہیں, بالکل نہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو, کسی شخص کے ساتھ انتقام نہیں ہوگا. پہلے انویسٹیگیشنز ہوں گی جو طریقہ کار ہے, اگر وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہاتھ ڈالیں گے. ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اٹھا کے 2 سال جیل میں ڈال دو, 2.5 سال جیل میں ڈالو اور کچھ ثابت نہ ہو. اچھا, جو کیسز چل رہے ہیں اپوزیشن لیڈران پر, ابھی بھی شاہ صاحب کیسز چل رہے ہیں, تو یہ معاملہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں چلا جائے گا کہ اقتدار میں ہیں, پھر اقتدار میں رہتے ہوئے اداروں کو ظاہر ہے انفلوئنس کر سکتے ہیں, اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے, یہ معاملہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں جائے گا کیا؟ دیکھیں میڈم, مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں ہوں, میرے اوپر کیس بنا, میرے اوپر 500 ارب کی بات ہوئی, بگڑتے بگڑتے پہنچتے موجودہ جو ہمارا آباء و اجداد کی بات ہے یا پراپرٹیز ہے یا پرانی 20 سال 25 سال اس ریٹ کو چھوڑ کے موجودہ ریٹ کو ڈال کے 1 ارب 22 کروڑ کی ٹوٹل پراپرٹی پر آتے ہیں. کیا میں کورٹ میں جا رہا ہوں, کورٹ نے میرے حق میں میرٹ پہ فیصلہ دیا ہے, تو کیا میں سفارش پہ جا رہا ہوں؟ اس طریقے سے اسی کو تو انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. کیسز بنائے, ابھی تک 3.5 سال میں ایک کیس بھی یہ ثابت نہیں کر سکے, کس کے اوپر بھی ثابت نہیں کر سکے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے بنایا ان کیسوں کو رہنے دیں, انصاف نہ ملے؟ اگر انصاف ملے تو کہیں فیور ہے. اس طریقے سے کام نہیں چلتا. ہمیں ملک کو بھی چلانا ہے. سب سے اولویت یہ ہے کہ بھوکے آدمیوں کو روزگار ملے,
फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो, हम अकेले न हों दुनिया में, हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो जो दुनिया को लेके चले, दुनिया के साथ चले, अपने मकसद को हल करे। कश्मीर का नारे लगाते लगाते कश्मीर को हम भूल गए। हमने सिर्फ अपना क्या नाम है सरीना के ऊपर बोर्ड लगा के दिन गिनते न रहे और नारे बड़े होते हैं कि तकरीर करते हैं। तकरीर से क्या हुआ? ये तो प्री प्लान नज़र आता था कि ये होगा, सही, और वो हुआ है। इसके लिए जरूरी है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन है जिसने मिलकर हुकूमत बनाई है ये एक रहे। मिसाइल गिरता है, कहते हैं कि हम शेर है, हम हिंदुस्तान से नहीं डरते। मिसाइल गिराया, क्या किया है लोगों ने? दुनिया में गए, यूएन में गए, कहा कि गलती हो गई है, बातचीत हो रही है, हम पॉजिटिव लोग हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। भाई मिसाइल गिरा है, एटमी मुल्क है जिसने मिसाइल गिराया है, कल हमारा भी मिसाइल गिर सकता है, क्या हमें वो बख्शेंगे? हमने पायलट को छोड़ दिया, ग्रेस दिखाई है, क्या ग्रेस दिखानी है या बुज़दिली है? सही, हमारे कश्मीरी भाइयों को जिस तरीके से जुल्म हो रहा है उसकी बात नहीं हो सकती थी? सही, इनको रख लेते, बात करते उनसे, गिव एंड टेक करते उनसे कि ये हम करते हैं, ये हमें दिया जाए। शाह साहब, ये भी कहा जा रहा है कि देखते हैं कि ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है ये कितनी देर चलते हैं, इनमें कितनी देर तक इत्तफाक रहता है, प्यार मोहब्बत से ये लोग रहते हैं, क्योंकि पीडीएम का एक्सपीरियंस सबके सामने है। ज़रा बात पे एक दूसरे पर से अलग हो जाना। एक बात पीपल्स पार्टी को पसंद आती थी तो नून लीग को पसंद नहीं आती थी, नून लीग एक बात पर राज़ी होती थी तो पीपल्स पार्टी एक बात पर राज़ी नहीं होती थी। तो तहरीक इंसाफ को एटलीस्ट इस चीज़ का इंतज़ार है कि देखते हैं कि इनका इत्तेहाद जो है ना वो कितनी देर तक चलता है। अभी तो जब वो पोर्टफोलियो में के बात आएगी, तकसीम होंगे, उस पर मसाइल कह रहे हैं खड़े हो सकते हैं। देखें, बात यह है कि बड़ा बोल में नहीं बोलता, हम सियासतदान हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की जो सोच है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नून से अलग है, नून की हम से अलग है, मेंगर साहब की अलग है, एमएमए की अलग है, हर जमात की अपनी अपनी एमक्यूएम की अलग है। मगर जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं वो ये नहीं है कि हमें जाके हुकूमत चाहिए। उस मकसद में सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि इक़्तिदार को बेहतर करके, लेजिस्लेशन करके, नई इलेक्शन कराएं 4, 5, 6 महीने के अंदर, और नई हुकूमत आए और ख़ुद ज़िम्मेदार हो। और जो भी आए, चाहे इमरान खान आ जाए, इमरान को लेके आते हैं तो अगर उनको यही चाहिए। लेकिन उनके नज़दीक तो ये बेहतर था ना कि अगर ईवीएम रहता तो साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते थे, लेकिन आप लोग तो चाहते हैं कि ईवीएम ना हो, ईवीएम के होते हुए, आप लोगों के नज़दीक ईवीएम के होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। मोहतरमा, ईवीएम मौजूद है, अभी है, 10 लाख ईवीएम मशीनें हैं, 10 लाख वो कनेक्शंस हैं, झूठ पे मुबनी। हमारा प्रोपोजल बड़ा वाज़ेह है। हम ये चाहते हैं कि अपने ओवरसीज पाकिस्तान को इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी हक हो, वोट देने का भी हक हो, हमारा प्रोपोजल है। और उनकी स्पेशल सीटें भी की जाएं कि प्रॉपर वहाँ के लोग अपनी नुमाइंदगी करें। 60% तो आपके लोग वोट दे ही नहीं सकते। सऊदी अरब, दुबई, कतर, दोहा, ये जितने इलाके हैं यहाँ पे इलेक्शन अलाउ ही नहीं है। आप 60% को निकाल के 40% को ईवीएम मशीन डाल के दे देंगे, ये पॉसिबल है? आप उनको वो राइट दे जो वहाँ के ही लोग हो। वो लोग सही माना में खिदमत ये है ओवरसीज़ की कि वो आए, पार्लियामेंट के अंदर आए, अमेरिका से आए, यूरोप से आए, फ्रांस से आए, लंदन से आए, जर्मनी से आए, सऊदी अरब से आए, अबू धाबी से आए, अपने अपने लोगों के मसाइल लेके पार्लियामेंट में आए। ये तो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है उन गरीबों को, और वो समझते नहीं हैं, गोरे बन गए, समझ में उनको बात नहीं आती। पीपल्स पार्टी या नून या ये इत्तेहाद क्या देना चाहता है उनको। हम तो वो देना चाहते हैं जहाँ से वो नुमाइंदगी करें। सही। नैब को ख़त्म करेंगे आप लोग, क्योंकि
2008 से 13 तक आप लोगों की हुकूमत रही, बाद में एहसास हुआ कि नैब कवानीन में तरमीम कर लेते। सर मैं बता रही हूँ 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत रही, बाद में उन्हें अफसोस हुआ कि हम तो तरमीम कर लेते। किसने कहा है आपको? क्या? हाँ ये ज़रूर है कि नेब को हम सियासत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। सियासत में नेब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई साबित होती है तो हमारे पास लॉ भी है, कानून भी है, इन्वेस्टिगेशन है। नेब लॉ के अंदर जो फॉल्ट है उसको ठीक करेंगे। आइन से टकराव में जो चीज़ें आती हैं उनको ठीक करेंगे। आइन को हम बेहतर फजीलत देना चाहते हैं, आइन को अबव रखना चाहते हैं। पाकिस्तान का कानून आइन के ताबे है। बाकी नेब को ख़त्म करना, ये करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, फलाना करेंगे, हमें अवाम को बचाना है, हमें ना छोड़े। ये लेकिन ये नून लीग की सोच आप लोगों से ज़रा डिफरेंट है। वो कहते हैं सियासत और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। कुछ दिन पहले शायद खाकान अब्बासी ने कहा हम आएंगे, हम नैब को ख़त्म करेंगे, क्योंकि नैब और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। ये मुत्तफ़िका फैसला होगा। ये मेरी राय भी है, शायद की भी राय है, ठीक है, मगर जब ये बात आएगी मुत्तफ़िका तो उस पर फैसला होगा। सही। तहरीक इंसाफ ने तो असम्बलियों से इस्तीफे देने का जो है ना वो फैसला किया। वो कहते हैं अगर इलेक्ट हो जाते हैं शहबाज शरीफ साहब तो हम जो है वो असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। आप समझते हैं कि उनका दुरुस्त फैसला होगा? 2014 में भी उन्होंने ये इस तरह किया था, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ देंगे था। नहीं देंगे। अच्छा। और मैं सियासतदान हूँ, मैं उनको मशवरा भी दूंगा और यही दूंगा कि पार्लियामेंट के में रह के सियासत करें। और जैसे मैंने 2018 में उनसे कहा था, 17 में कहा था, इस्तीफ़ा वापस करवाई थी मैंने 2015 में, 14 में, तो वही उनके फ़ायदे में गई जो मैंने कही थी। आज भी हम मुखालिफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं है। सही। शाह साहब कल जो सारा दिन जो कुछ होता रहा और आखिर में आके रात 10 बजे जो हालात पैदा हो गए, कहीं आप लोगों को भी ये महसूस हुआ कि हालात जो है वो किसी और कुव्वत के हाथों जो है ना वह मुंतकिल ना हो जाए, कोई तीसरी कुव्वत ना आ जाए? जिस तरह हम लोग मूवमेंट देख रहे थे पार्लियामेंट हाउस के बाहर, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, जिस तरह रेड जोन में हम सारी हलचल देख रहे थे, कहीं आप लोगों को महसूस हुआ कि हालात अब किसी और के पास जो है ना वो जा रहे हैं, सिचुएशन हाथों से निकल गई है? देखें, बात सिंपल ये है कि हम सियासतदान हैं, हालातों को समझते हैं। अगर आप नहीं समझते तो अल्लाह ताला आपको कोशिश करे कि अल्लाह से कहे कि आपको समझाने की कोशिश करें। अगर यही हालात हमें पैदा करने होते तो फिर हम आईनी तरीका नहीं लेते, एहतजाज नहीं करते। हमने आईनी तरीका लिया। आप हमें बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन में मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर है तो पीपल्स पार्टी ने पहले दिन कहा था कि हम आईनी तरीका लेंगे, हम गैर आईनी तरीके से हुकूमत को नहीं हटाएंगे। और यही सवाल हो रहा था कि कैसे करेंगे ये लोग। और आपने देखा कि हमने लोगों को एहसास दिलाया और उस हालात से फ़ायदा लिया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए 174 आप तो आइन की बात कर रहे थे। सवाल मेरा ये था कि जिस नहज पर कल हालात पहुंच चुके थे, ज़ाहिर है डिलेइंग टैक्टिक्स आप लोग तो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो तो हुकूमत कर रही थी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल, तो उसकी वजह से कहीं आप लोगों को लगा कि जो अब सिचुएशन है ये किसी और के हाथों में जा सकती है? नहीं गई ना। हाँ, आप अप्रिशिएट करें, नहीं गई। बिल्कुल। और हमने ऐसे हालात पैदा नहीं किए। हमने सियासी वर्कर की तरह बिहेव किया। हम हाउस में बैठे रहे, गालियां भी सुनते रहे, चीखें भी सुनते रहे और बड़े बड़े नारे भी सुनते रहे, मगर हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमने यही किया कि जैसे सियासतदान करते हैं कि हमें पार्लियामेंट की इज़्ज़त और एहतराम की तरफ जाए, मगर उन लोगों ने मुकम्मल कोशिश की कि कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि तीसरी कुव्वत आ जाए। और आपने देखा, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, आप मौजूद होंगी कि अपोजिशन ने मुकम्मल सब्र और तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया।